Good morning, dear students. How are you all? Hope must be fine Morning, sir. and safe. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, good morning. No need to reply. Yesterday, we have seen about challenges or problems of Indian retail industry. I'm continuing from the same topic. थोड़ा सा पीछे का रिवीजन के साथ हम आगे बढ़ते हैं. Challenges में we have seen that global economic slowdown impacting consumer demand very drastically. Consumption declines in the advanced economies, the country like United States of America, Japan, Germany, they are the financially developed nations, advanced economies country, and they have faced the problem of consumption declining. That's why retailing faced with problem. Competition from unorganized sector. This is also a big issue that they are facing the competition. That what mindset is that we used to purchase from mom and pop kirana shop. हम अपने आसपास के शॉप से सामान लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं. That's why unorganized sector से हमारा competition retailing का बहुत जबरदस्त बना. Retail sector yet to be recognized as a secured industry. एक भरोसा नहीं था लोगों का, ट्रस्ट नहीं था कि ये बहुत लंबे समय तक चल पाएगी, फ्यूचर ओरिएंटेड हो पाएगी, करियर इसमें बहुत इफेक्टिव रहने वाला है एम्प्लॉइज का. हाई रियल एस्टेट कॉस्ट इंक्रीजिंग. जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 डिकेड्स में रियल एस्टेट में एक बूम आया है. दे हैव ग्रोथ सिग्निफिकेंटली एंड इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये हुआ है कि कोई भी नई कंपनी जब अपने आप को स्टार्ट करना चाहे, they have to feel a very huge pressure on financial background. They have to be sound enough to cope up with the real estate investment cost. Lack of basic infrastructure is there. People are not so user friendly. People are not very comfortable कि how to generate infrastructure. So infrastructure scarcity and proper management of infrastructure was a big challenge. Supply chain inefficiencies, where their demand is more, supply is less. Where there is supply is less and there is demand is more. This situation creates inefficiencies in supply chain in situations. Challenges with respect to the human resources, definitely. We have seen that लोगों में mindset है कि आप retail में काम करते हो, आप sales में काम करते हो, that means you are doing something bad job. This is a general myth. It was in earlier. Nowadays, a very good respectful platform it is where we are working. Retail shrinkage, इन सारे problems के कारण इंडिया में रिटेल इंडस्ट्री ने अपने आप को श्रिंकेज बना लिया था, अपने आप को श्रिंक कर लिया था कि that they don't want to be invest much more. Now continuing further, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. Good. Now continuing further, advantage, benefit और significance of retail management. अब हम इसका एडवांटेज, पॉजिटिव, नेगेटिव साइड हमने देख लिया. क्या क्या नेगेटिव साइड है उसको हमको दूर करने के लिए जो रेमेडीज लेने पड़ेंगे विल टेक इन फ्यूचर. नाउ एडवांटेज क्या है रिटेल्स का? सबसे पहला कस्टमर सेटिस्फैक्शन. हम अपने कस्टमर से डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं, हम अपने कस्टमर को डायरेक्ट सर्विसेज देते हैं, हम अपने कस्टमर को डायरेक्ट रिस्पॉन्स करते हैं उनके क्वेरीज के ऊपर, उनके ग्रीवेंसेस के ऊपर, उनके रिक्वेस्ट के ऊपर, उनके कंफ्यूजन के ऊपर. सो इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन. The biggest advantage of retail management is the customer satisfaction. Efficacious planning and management prevent the situation where customer need to be kept waiting. Even if there are a lot of people in the store, as in case of festivities, managing the order is a key to success. It is the task of retail manager to ensure that the customer executive assists the customers and attend everyone properly. आप देखते हैं, आप जब भी रिटेल आउटलेट में जाते हैं, क्राउड चाहे कितना भी क्यों ना हो, लेकिन कस्टमर
सेटिस्फैक्शन के लिए रिटेल आउटलेट्स में जो रिटेल मैनेजर्स होते हैं, उनके नीचे रिटेल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, रिटेल ट्रेनीज होते हैं, वो कस्टमर्स को चारों तरफ से सराउंड किए रहते हैं कि कहीं भी उनको कोई प्रॉब्लम हो, दे आर eager टू असिस्ट, दे आर विलिंग टू असिस्ट कि कस्टमर को किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। रिटेल आउटलेट विजिट किया आप लोगों ने कभी? बिग बाजार, यस पेंटालून? सर। चलिए, तो यस वहां सर। वहां आप लोगों ने इस चीज को लाइव भी फील किया होगा। आप अगर किसी काउंटर पे जा रहे हैं तो वहां पे कैसा है, सेल्समैन दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर सर को, मैडम को कोई प्रॉब्लम हो तो वी गो एंड असिस्ट देम। ऐसा कभी हुआ है सिचुएशन में? यस इधर सर, उधर भी देखते हैं तो ध्यान देता है, लेकिन तुरंत अच्छा पूछ नहीं चलाता लगता है है। तो क्या करिए। देखिए, उनका पर्पस ये है ना, वो आपको मतलब घूर नहीं रहे हैं, काम है, वो आपको लगेगा। असिस्ट करने के लिए कि whenever you feel danger, whenever you feel difficult। अब बहुत बार ऐसा होता है कि दो प्रोडक्ट है हमारे पास, हम कौन सा प्रोडक्ट का सिलेक्शन करें, हम कंफ्यूज है क्योंकि प्रोडक्ट तो सारे अच्छे हैं। तो वो हमसे पूछते हैं कि सर आपका पर्पस क्या है, सर आपका नीड क्या है, उसके हिसाब से वो देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेस्ट है। अकॉर्डिंगली वो हमको सजेस्ट करते हैं। लास्ट में हमको लगता है कि नहीं, उन्होंने जो सजेस्ट किया है दैट इज वर्दी सजेशन। तो पर्पस क्या है उनका? हमें परेशान करना या हमें असिस्ट और करना? संतुष्ट भी करते हैं। दे यूज टू असिस्ट अस। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, हैसल फ्री शॉपिंग। आज के दौर में कोई भी बंदा बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। इट हेल्प्स द कस्टमर टू फाइंड ऑल द प्रोडक्ट इजिली इन द स्टोर। All the products are arranged properly by categorizing them according to their price, quality, brand. So the customer can easily find the desired product in no time. The retailers won't even need to set up and fetch the product for their customers. Just the way a customer feels satisfied after a shopping experience, it helps people in saving the retailer's time. बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे सामने डिस्प्ले में सारे प्रोडक्ट लो प्राइस रेंज, मिडिल प्राइस रेंज, हाई प्राइस रेंज, लो क्वालिटी, मिडिल क्वालिटी, टॉप क्वालिटी, लो ब्रांड, मिडिल ब्रांड, टॉप ब्रांड, डिफरेंट डिफरेंट रैकिंग करके वहां पे डिस्प्ले कराया जाता है ताकि कस्टमर, अब अलग अलग कस्टमर का नीड अलग हो सकता है ना। अब सपोज कोई मिडिल क्लास का बंदा जा रहा है तो वो हायर क्लास का प्रोडक्ट यूज करके क्या करेगा, हो सकता है उसके पहुंच के बाहर हो। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हर तरह के प्रोडक्ट का डिस्प्ले करते हैं। जिस कस्टमर का जिस प्रोडक्ट के साथ नीड फुलफिल होता है, नीड कैटर होता है, उस तरह के प्रोडक्ट को वो यूज करते हैं और सेटिस्फाइड फील करते हैं। रिटेलर्स के लिए भी ये बहुत बढ़िया सिचुएशन है जहां वो कि कस्टमर जब ऑर्डर करे फिर हम स्टोर से लाके उनको दें, उससे बेटर है कि कस्टमर के सामने सब डिस्प्लेड है, आपको जो चाहिए आप सेलेक्ट कर ले अपने मन मर्जी से, अपने पसंद से, अपने प्राइस के अकॉर्डिंगली सारा फीचर हमारे सामने दिया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो शॉपिंग, नॉर्मल शॉपिंग टेंडेंसी में हम पुर्जा लेके जाते थे, भैया हमारा पुर्जा लिखिए, ये पुर्जा लिखिए, ये सामान लिखिए, एक एक सामान लिखवाते थे। अब एक एक सामान वो दिखा रहे, नहीं ये नहीं, रेड लेवल का चाय लिखा तो रेड लेवल का प्रीमियम टी चाहिए या गोल्ड टी चाहिए, वो तो पुर्जा पे लिखा नहीं, रेड लेवल का टी है ऐसे। अब तो कंफ्यूजन हो गया। अब जिसका है उससे पूछ रहे हैं, मम्मी रेड लेवल का गोल्ड लेना था या प्रीमियम टी लेना था। तो ये क्या हैसल क्रिएट करता है। अभी ऐसे हमारे सामने में दिख रहा है, हम पूरी फैमिली एक बार घूम भी आते हैं, शॉपिंग भी हो जाते हैं, बच्चे भी वहाँ एंजॉय करते हैं, और भी अदर पर्पस है हमारा, वो भी हम वहां पे फुलफिल कर लेते हैं। और घूमते टहलते अपने पसंद का देख के, क्वालिटी देख के, प्राइस देख के, समझ के, जहां कंफ्यूजन होता है वहां सेल्समैन से असिस्टेंस लेके हम हर तरह से अपना सेटिस्फैक्शन भी बढ़ाते हैं और रिटेलर्स का टाइम भी बचाते हैं, और साथ में एक गुड शॉपिंग एक्सपीरियंस भी जनरेट करते हैं। राइट? समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। गुड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंट अननेसेसरी क्योस एंड
शॉप लिफ्टिंग एक्टिविटीज, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कहीं भी हम नए जगह पे अगर जाते हैं तो वहां पे अननेसेसरी का हमारे माइंड में क्योस चलता है. Proper retail management prevents a lot of unnecessary crowd and chaos in the shop. The customer enter, pick up their favorite products, pay the bills, and leave with a smile. That's an example of the effective retail management. This kind of management also keeps a check on the shoplifters. एक माइंडसेट पे ये असर पड़ता है, माइंड पे एक इम्पैक्ट देता है कि हमको कैसे और बेहतर तरीके से हम काम करें, कैसे और अच्छे तरीके से हम काम करें, कि जहां पे कि कोई अननोन आदमी भी, बंदा बहुत बार होता है कि ज्यादा क्राउड को देखो घबरा जाता है. कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बास्केट अलग है, हमारा चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स अलग है, हम अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट किए, काउंटर पे गए, बिल पे किए एंड स्माइल करते हुए वहां से बाहर निकल के चले आए. तो ये क्या हैसल के साथ साथ हमारा जो अननेसेसरी माइंड में क्योस था, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सारा चीज यहाँ खत्म हो गया. अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स को उठाइए, बास्केट में डालिए, काउंटर पर पेमेंट कीजिए, दैट्स इट. तो हमारा प्रोसेस कहीं ना कहीं इजी हो गया. नहीं, नेक्स्ट, प्रॉपर अकाउंटिंग, ये बहुत मायने रखता है. When the retailers maintain a database where everything from all that was brought into the shop for sale, all that was sold in the mansion, it makes a daily calculations and accounting less complicated and accurate. अच्छा, कभी आप लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप किसी रिटेल में गए, वहां पे अब जहां क्राउड हो वहां तो हर तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव माइंडेड भी, नेगेटिव माइंडेड भी. अक्सर आप लोग न्यूज में भी देखते होंगे कि कोई बंदा कुछ सामान उठाया, पॉकेट में रख लिया, अपने पर्स में रख लिया और बाहर निकलने लगा. तो जैसे ही वो मेन गेट पे पहुंचता है, वहां जो जैमर लगा होता है वो सायरन दे देता है और सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाता है कि इसके बैग में कोई ऐसा सामान है जिसका बिल पे नहीं हुआ है. क्या ऐसा कोई लाइव एग्जांपल किसी ने फेस किया है जब वो रिटेल में घूम रहे थे, रिटेल में शॉपिंग करने गए हो? क्या फेस किया है आपने, बताइए. जी सर. अरे सर, एक मेरे आगे मतलब पहले कस्टमर थी जो साड़ी परचेज की थी बिग बाजार ओके. से. उस साड़ी में से वो पेड हो गया था, लेकिन एक टैग निकालना भूल गया था सेल्स में. ओके. जिस कारण मतलब बिल तो पेड था, लेकिन उस टैग के कारण वो सामान बाहर जाते ही सायरन बज गया था. सायरन बज गया. तो दिस इज द मैकेनिज्म, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम है कि जब तक काउंटर पे हम बिल पे ना करें, और बिल पे करने के बाद उसमें एक देखते होइएगा कि एक चिप टाइप का लंबा सा प्लास्टिक का उस पे चिपका होता है, और वो लेजर से जब हम स्कैन करते हैं उसका प्राइस कंप्यूटर पे, उसके बाद ही वो उसको हम आउट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट से. और जब तक ये दोनों प्रोसेस नहीं होगा, प्रोडक्ट ऑफिशियली स्टोर से बाहर ले जाने की परमिशन नहीं होगी, क्योंकि अभी उसका डेटाबेस में ये शो कर रहा है कि ये प्रोडक्ट हमारा इन्वेंट्री में है, अभी बाहर नहीं गया है. आजकल ये छोटे छोटे चीज ना आप देखेंगे बहुत सारे शॉप, जो मेडिसिन शॉप्स हैं, वो भी फॉलो करने लगे हैं. दवा को बिल पे करना है, स्कैन कर लिए, बिल पे हो गया, आप वो बैच नंबर लेके आराम से बाहर जा सकते हैं. जब तक पे नहीं हुआ आप नहीं लेके जा सकते. तो छोटे छोटे दुकानदार भी जब इसका फायदा उठा रहे हैं, इससे क्या होता है कि प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप हो जाता है. डेली का कैलकुलेशन एट द एंड आपको ऑटोमेटिक हमारे सामने स्क्रीन पे दिख जाएगा कि आज कितना सेलिंग हुआ, कितना प्रोडक्ट अवेलेबल है, किस रेंज का, किस क्वालिटी का, कितना प्रोडक्ट है, कितना प्रोडक्ट हमने आज सेल किया. ये बेनिफिट, एक्यूरेट बेनिफिट हमको मिलता है. Then well organized store and inventory management. In case of proper retail management, various shelves on which the different categories of the product are placed are well labeled. This allows the buyers to locate the products all by themselves. Furthermore, it ensures that the shop is well stocked. The customer should never be told that the particular product is out of stock at any point of time.
as that allow them to go to other store. देखिए सेल्स में एक बहुत यूनिक चीज मैं आपको बता रहा हूं, we never used to say no. हम ना शब्द कभी नहीं बोलते। ये थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही आप ना बोल देते हैं, इन ओ नो, कस्टमर परसीव्स नेक्स्ट वन, एन फॉर नेक्स्ट, ओ फॉर वन, मीन्स अब इस आउटलेट में इस सेल्समैन के पास हमारा सॉल्यूशन नहीं है। देन दे स्टार्टेड विजिटिंग अनदर स्टोर। सो हम उनको ना तो बोल नहीं सकते हैं, आउट ऑफ स्टॉक बोल सकते हैं, सर वी विल बी एबल टू डिलीवर इट बाय टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर 4 days, 5 days। मतलब वही हुआ, इंटरप्रिटेशन आप निकालेंगे तो वही हुआ, सर ये सामान अभी स्टॉक में नहीं है, आ रहा है, ट्रांजिशन में है, 1-2 दिन में आ जाएगा। रादर कि हम ये बोले कि नहीं सर ये सामान हमारे पास नहीं है। नहीं, ना वर्ड, नो वर्ड थोड़ा सा एरोगेंसी शो करता है कि हम किसी को इनकार कर दिए, मना कर दिए। तो मना नहीं करेंगे, कोई चीज नहीं भी हो, हम बोलते हैं सर आउट ऑफ स्टॉक है, इतनी ज्यादा डिमांड थी कि तुरंत आउट ऑफ स्टॉक हो गया, एंड वी एश्योर यू जैसे ही ये प्रोडक्ट आएगा आपको इंफॉर्मेशन चला जाएगा। काउंटर पे देखते हैं बिलिंग के पहले वो आपका नंबर डालते हैं, अगर आपका कोई प्रेफरेंस है तो वहां ऐड कर देते हैं, अदरवाइज उस रिटेल आउटलेट का जो भी ऑफर, जो भी स्कीम्स, जो भी बेनिफिट्स होता है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो आपको ट्रांसफर करते जाते हैं, ताकि आपको अनइंटरप्टेड सर्विस मिलती रहे। राइट? समझ में आ रहा है? हेलो? यस Yes, sir. बोलते रहिएगा, नहीं तो लगता है डिस्कनेक्ट तो नहीं होगा। Yes, sir. यहां तक किसी को दिक्कत? No, sir. No, sir. चले अब आगे। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज और ग्रोथ ऑफ इंडियन रिटेल इंडस्ट्री। हम लोगों ने प्रॉब्लम देख लिया, रिटेल का बेनिफिट देख लिया। अब इंडिया के अंदर वो कौन कौन से बड़े ड्राइवर्स हैं, वो कौन कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि इंडिया में रिटेल इंडस्ट्री का ग्रोथ हो, और प्रेजेंट जो सिचुएशन है रिटेल का, कि उतना ज्यादा रिस्पॉन्स, उतना बढ़िया ग्रोथ, उतना इंटेंसिटी रिटेल को नहीं मिला है, उसको कैसे इंक्रीज करें। इसके लिए सबसे पहला फैक्टर है कंज्यूमर पुल। पुल एंड पुश दो मैकेनिज्म होता है। एक तरफ जहां पे कंज्यूमर प्रोडक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मींस हमारे पास जो प्रोडक्ट है अगर उससे आप सेटिस्फाइड हैं, उससे आपका नीड फुलफिल हो रहा है, तो हम ना भी बोलेंगे तो भी आप उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, बिकॉज ऑफ योर कंज्यूमर पुल ड्राइव एक्टिवेटेड। It is one of the largest factor that has contributed to the growth of the retail sector in India. The retailers are trying to offer a range of product and services to easily the needs of the middle and upper class customer. These customers are seeking products at affordable prices that not only after values but also convenience. The modern retailers provide a range of product, attractive prices, ambience, value-added services like credit and debit card payment, etc. Value-added services के ऊपर हम लोगों ने कल भी काफी डिटेल चर्चा की थी, जिसमें देखा था कि किस तरह का सर्विसेज हम उनको दें ताकि हमारा प्रॉम्प्ट भी हो और कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। एम्बियंस, अपना इंटीरियर कितना अच्छा रखें, ताकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि अरे फलाना आउटलेट बहुत बेहतरीन इंटीरियर में है, वहां सारा बेसिक एमिनिटीज है, सारा फैसिलिटीज है। जैसे आजकल ये कॉन्सेप्ट है कि लोग जब जाते हैं मॉल में या बड़े आउटलेट में शॉपिंग करने के लिए, तो अब हस्बैंड जाएंगे, वाइफ जाएंगे, तो बच्चे को कहाँ छोड़ेंगे? बच्चों को लेके जाएंगे, तो बच्चों के लिए वहां पे छोटा सा एक पार्क टाइप का डिजाइन करके कुछ झूला, कुछ ड्राइविंग कार्स, कुछ टॉयज वहां डाल दिए ताकि बच्चे वहां आराम से अपना खेल रहे हैं और पेरेंट्स हैसल फ्री शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये साइट ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कंज्यूमर को शॉपिंग करने के लिए, रादर कि ऐसे जगह जाए जहां बच्चे को एनी टाइम गोद में टांगना पड़े। राइट? आवाज आ रही है?
Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कंज्यूमर अपने तरफ कब पुल करता है आउटलेट को या प्रोडक्ट्स को? व्हेन दे फील सेटिस्फाइड, व्हेन दे फील हैप्पी विद द सिस्टम। नेक्स्ट, सोशल चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर एंड कंज्यूमर बिहेवियर। ऑलरेडी शायद आप लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा होगा, बिकॉज यू आर 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स। कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा है आपने? हेलो, Yes, sir. व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर? अगर हम किसी को एक दो सेंटेंस में समझाना चाहें कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, तो हम उनको कैसे समझा सकते हैं? Sir, it's all about identification, anticipation and satisfying. मतलब मेरा कंज्यूमर बेसिकली मार्केट में चाहता क्या है, उसके नीड और वांट को सेटिस्फाई करना, ओके कंज्यूमर के माइंड को रीड करना, ओके जो कह सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। ओके। और कोई? सर कंज्यूमर बिहेवियर इज तो कोई कस्टमर कैसे सर बाय करता है, यूज करता है और प्रोडक्ट को डिस्पोज कैसे करता है, इसको ना। ओके, और कोई अटेम्प्ट करना चाहेंगे? नो वन। 79 लोग प्रेजेंट है और सिर्फ 2 लोग, बाकी लोग मोबाइल में लॉगिन करके फोन रख के दूसरा काम में व्यस्त है क्या? No, sir. ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एक अनाउंसमेंट भी है आप लोगों के लिए कि अब आप लोगों को चैट बॉक्स में अटेंडेंस टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैं सेशन के बीच में कभी भी सिर्फ 2 मिनट के लिए एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे आपको अटेंडेंस फिल करना है और मैं अनाउंस कर दूंगा कि मैंने लिंक डाल दिया चैट बॉक्स में और उसको आपको फिल करना है, और 2 मिनट के बाद उस वो लिंक ऑटोमेटिक डीएक्टिवेशन मिल जाएगा, ताकि हम सबका कंसंट्रेशन एक दूसरे की तरफ रहे। और जो लोग डीएक्टिव होंगे, सर अगर किसी का नेट अगर नहीं चलेगा 2 मिनट के बीच में तो सर क्या होगा? कम से कम 5 मिनट का टाइम दीजिए। जब आप गूगल मीट से कनेक्टेड हैं तो नेट तो चल रहा है ना? नहीं, डोंट थिंक सो। सर बहुत बार यहाँ कट रहा है ना, लेकिन गाँव कभी पे है कभी तो सर। प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, तो आप डिस्कनेक्टेड होंगे ना? हम्म। आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तब प्रॉब्लम होगा ना? ये Yes, sir. आई डू एग्री, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। तो वैसे सिचुएशन में हम केस टू केस देखेंगे। आप डिटेल्स अपना पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजिएगा स्क्रीनशॉट के साथ कि आप थे, आप प्रेजेंट थे, आप डिस्कनेक्ट हो गए। ओके सर। या मेल पे भेजिएगा, ठीक है? वो तो जनरल केस नहीं है, वो तो रेयर केस है। जनरल केस ये है कि चैट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां आपको अटेंडेंस फिल करना है। जैसे हम चैट बॉक्स में पहले नाम लिखवाते थे, बस वही चीज उस फॉर्म पे डालना है, ठीक है? नाउ अब कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में मैं आपको एक समरी गुरु मंत्र दे रहा हूं, ठीक है? W5H2 नाम सुना है आपने इसका? यस सर। क्या है ये? यस सर। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हाउ एंड Who? When to buy, Yes sir, 5W how to buy, 1H. how much to buy। ये पूरे कंज्यूमर बिहेवियर का ना समरी है। इस चीज को अगर हम समझ जाएंगे तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझाना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा हमको एक कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करना, ठीक है? तो यहाँ सबसे पहले हमको ये फैक्टर आइडेंटिफाई करना होगा कि सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस के लिए वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहले हमको अपने सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस करना पड़ेगा, कंज्यूमर के बिहेवियर में चेंजेस क्रिएट कराना पड़ेगा। Indian women, especially in the urban areas, are highly educated, professionally qualified and employed. Apart from maintaining balance between work and personal life, she has to manage her households. As her family is nuclear, with an increase in the family income, consumers are also looking for different lifestyle. They look for one-stop shopping and look for more information, assortment, quality
attractive ambience, and good customer services. Customers are seeking value for money for the goods purchased, and these needs are taken care by the supermarkets, departmental stores, and so on. Nuclear families are a common concept in the urban areas, and it is common to see the family members going for shopping together, and they look for places that not only after shopping but also eating joint entertainments. Agreed or not? ये देखिए हमारे यहाँ का एक जो माइंडसेट है कि वुमेन्स चाहे जॉब भी करें, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को इग्नोर नहीं कर सकती। सुबह ऑफिस जाने के पहले नाश्ता खाना बना, लंच बॉक्स में पैक हुआ, अपना भी पैक हुआ, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली का एग्जांपल हमने कोट किया है, अपना भी हमने पैक किया, बच्चे क्या खाएंगे दिन में वो भी हमने रेडी कर दिया, हस्बैंड को भी पैक करके दिया, हम अपने ऑफिस वो अपने ऑफिस। शाम को जब लौट के आए फिर फ्रेश हुए, चाय कॉफी हुआ, उसके बाद फिर से डिनर की तैयारी। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक स्पेशलिटी है, और ये स्पेशलिटी आपको ज्यादातर इंडियन कल्चर में ही देखने को मिलेगा। अब्रॉड कल्चर में, यूएस कल्चर में, जर्मन कल्चर में, जापानीज कल्चर में ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती है। तो हमारे कल्चर की ये एक स्पेशलिटी है। दैट मीन्स हमारा कंज्यूमर बिहेवियर इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब हम इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं, दैट मीन्स वी लुक एन आउटलेट who take cares all these requirements। तो हमारे यहाँ जो रिटेल आउटलेट्स हैं, सुपरमार्केट है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, उनको हम क्या करते हैं, उनके ऐप पे जाते हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, डिलीवरी कितने बजे देना है वो भी मेंशन कर देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि डिलीवरी बॉय डिलीवरी करने के लिए घर पे आए और हम ऑफिस में हो। तो हम वो टाइमिंग, डेट सब आइडेंटिफाई करते हैं, उस समय डिलीवरी पहुंचता है। आइदर हम ऑनलाइन पे करें, डेबिट कार्ड से पे करें, कैश पे करें, पेटीएम करें, फोन पे करें, बहुत सारा मेथोडोलॉजीज है। दैट मीन्स कि हम खुद भी इंजॉय कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं और जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं। बट अगर कभी मन हुआ कि आउटलेट बाहर जाना है हमें, तो पूरी फैमिली एक साथ शॉपिंग करने के लिए गए, लिस्ट दे दिया, सामान भी हमारा पैक हो रहा है, शॉपिंग भी कर रहा है, एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं, बाहर डिनर करना, जो भी मतलब फुल एंटरटेनमेंट, फुल एंजॉयमेंट। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? सोशल स्ट्रक्चर एंड कंज्यूमर बिहेवियर में चेंजेस आने के बाद। क्योंकि हमारी सोशल स्ट्रक्चर क्या कहती है कि घर का खाना हेल्दी खाना। तो अब इसको थोड़ा सा हम चेंज नहीं करेंगे कि कभी कभार आउटिंग भी जरूरी है। आप आज कोरोना काल के दौरान पिछले 6 महीना से लगभग सब लोग घर में बंद हैं, स्पेशली बच्चे। 10 साल से 12 साल से ऊपर के लोग तो फिर भी बाहर निकल जाते हैं, 10 साल से नीचे के लोग जिनको हमेशा बाहर जाने की एक हैबिट थी, वो तो धीरे धीरे कहीं ना खत्म हो गई है। बच्चे न पार्क जा रहे हैं, न मॉल जा रहे हैं, कहीं नहीं जा पा रहे हैं। ये क्या है? उनके ऊपर एक मेंटली प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। इवन कि बहुत बार तो केसेस में ऐसा देखा गया है कि बच्चों को अपने सोसाइटी में भी खेलने की परमिशन नहीं है। तो वो एक एडिशनल, वो नहीं समझ रहे हैं कि ये क्या है, क्यों रोका जा रहा है, इससे क्या होगा, बिकॉज उनका माइंडसेट अभी उतना ब्रॉडली डेवलप्ड नहीं है। बट द पॉइंट इज कि जैसे जैसे हम उस डेवलपमेंट फेज की तरफ इंटर कर रहे हैं, हमें अपने सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाना पड़ेगा, अपने कंज्यूमर बिहेवियर में चेंजेस लाना पड़ेगा, सो दैट इट कैन मैच आवर करेंट रिक्वायरमेंट रादर प्रीवियस वन। समझ में आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। Yes, sir. बीच बीच में यस यस बोलते रहिए, सो दैट कि आई कैन कम टू नो दैट आई Okay, एम sir. कनेक्टेड विथ यू। यस सर। लेट्स मूविंग अहेड। ओके सर, डेफिनेटली। रिटेलर प्रॉक्सिमिटी टू द कंज्यूमर्स। आज सुपरमार्केट में, मल्टी मार्केट में जब हम जाते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट में, तो प्रॉक्सिमिटी कितना ज्यादा है रिटेलर्स का कंज्यूमर्स के प्रति, इस चीज को आइडेंटिफाई करना होगा। दैट उनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो हमारे रिक्वायरमेंट के हैं कि नहीं, उनके पास जिन मैन्युफैक्चरर्स से वो उनका कोलैबोरेशन है, क्या वो हमारे मार्केट के लिए, हमारे रिक्वायरमेंट के लिए सूटेबल है कि नहीं। बहुत बार ऐसा देखा गया है, पैक्ड वेजिटेबल्स, पैक्ड फूड, जो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए इंजूरियस भी है, बहुत बेहतर उसका रिजल्ट हमारे इन्वायरमेंट में
हमारे मार्केट में उसका अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है। The manufacturers produce the product as per as the need of the consumers, and the goods will reach the consumers through the distributors. The retailers provide a vital link between the manufacturers and the consumers. Retailers are able to understand the market and the need of the consumer and communicate the same to the manufacturer. Food retailing in India is still in its early stages. हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में रिटेलिंग बहुत कम है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी देख रहे हैं कि मेकिंग इंडिया प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से इस लॉकडाउन में इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ रहा है, सो दैट कि आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है उसको भी हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सके। तो उसके तहत सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर कहीं मिलेगा तो एग्री बेस्ड फूड रिटेलिंग, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, इसका प्रोसेसिंग प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल है, हमको बस इसमें इन्वेस्टमेंट करके एक प्रॉपर डायरेक्शन क्रिएट करना है। बड़े प्लेयर को हमने इनवाइट किया है, कई सारे प्लेयर्स इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड है तो स्कार्सिटी रॉ मटेरियल की कभी होती नहीं है। यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर से अभी भी इंडिया का इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट होता है, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन दिस सेक्टर। It was influenced by the West, but based on the feedback from the customers, the manufacturers are changing. Indian consumers prefer to touch and feel the products before they buy. अब सपोज करिए 1 kg टमाटर अभी आपको मिल रहा है 50 रुपए में, 1 लीटर टोमेटो सॉस आपको मिल रहा है 250 रुपए में, डिपेंडिंग अपॉन ब्रांड। 100 रुपए का भी है, 150 रुपए का भी है, 200 रुपए का भी है, 250 रुपए का भी है। तो नॉर्मल ट्रेडिशनल माइंडसेट हमारा क्या कहता है, 1 kg टमाटर लेकर हम चटनी बना लेंगे, हो गया टमाटो सॉस। बट जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि कंज्यूमर और सोशल स्ट्रक्चर उस पर चेंज करने की जरूरत है। डेफिनेटली उस माइंडसेट में जब हम जाएंगे तब हम देखते हैं कि नहीं, अब उतना झंझट कौन करेगा, चीनी डालो या गुड़ डालो, टमाटो लाओ, बेटर है कि एक बॉटल ले आए, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, तो एक स्कोप बढ़ा टमाटो सॉस का। दैट मीन्स टमाटर तो हमारे यहाँ बहुत सस्ता है, सीजन में 10 रुपए केजी भी कोई नहीं पूछता है, सर के काफी मार्केट में फेंकाता है, हर घर से 2, 4, 5 टमाटर डेली सरा हुआ भी फेंकाता है, बिकॉज सस्ता है, हमारा कंजम्पशन उसमें ज्यादा है, प्रोडक्शन उसमें ज्यादा है। अगर हम उसको प्रॉपर प्रोसेसिंग करके हम उसको प्रोक्योर कर सकते हैं, एक बॉटल अगर हम लाते हैं तो कम से कम 6 महीने उसकी लाइफ बहुत कंफर्टेबली चलती है। तो दिस इज व्हाट जो वेस्ट हम एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो, स्लाइड शो कर दीजिए ना सर, छोटा छोटा दिख रहा है। स्लाइड शो में मुझे भी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि पता नहीं चल पाता है कि मैं कनेक्टेड हूँ। एनीवे जूम हो जाता है। ओके सर, करके देख, हिंदी वही कर दे स्क्रीन पे। अगर आप डिस्कनेक्ट होएगा तो आपको आवाज आएगी सर, डिस्कनेक्ट से। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। चलिए, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मेंटालिटी है, ये कहीं ना कहीं हमको ये इंश्योर करता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा ये बेनिफिट देना है, किसको, अपने कंज्यूमर्स को। कैसे, जो स्क्रैप बर्बाद जो हो रहा है हमारा टोमेटो का रॉ, उसको हम प्रोटेक्ट करके टोमेटो सॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो रिसोर्स इंडिया का ही ना सेफ हुआ नहीं। तो एग्री बेस्ड इंडस्ट्री जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, हम इस डायरेक्शन में और अच्छा करने वाले हैं। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ फैमिली ओन्ड एस्टैब्लिशमेंट्स। इंडियन कंज्यूमर्स यूज्ड टू मेक परचेजेस फ्रॉम लोकल फैमिली रन बिजनेसेस. These stores offer customers not only wide range of product but also convenience of payment and competitive price. However, with the exposure and increase in the income, may household prefer to have a different lifestyle and good shopping experience. This emerging need of the consumer is catered to by the retail stores like Reliance Retail, Vijay Sales. They know that they can create an overall retail experience and thereby enhance the customer brand interactions. Vijay Sales outlet namely versus DG Create caters.
to the need of the consumers with a wide range of specialized electronic products. आज हमारे पास ये वैरायटी है, हम अब एक ही ब्रांड को सेलेक्ट करते हैं और एक तरीके से फैमिली ओन एस्टेब्लिशमेंट। अगर हमारे घर में टेलीविजन है तो टेलीविजन भी सोनी का होगा, म्यूजिक सिस्टम भी सोनी का होगा, वॉशिंग मशीन भी सोनी का, मतलब जितने भी अप्लायंसेस है हम एक ही कंपनी को यूज कर रहे हैं। दैट इज व्हाट फैमिली ओन्ड एस्टेब्लिशमेंट। एक ही तरीके का कंपनी को हम बढ़ाते जा रहा है और कंपनी भी ये कोशिश कर रही है कि अपने आप को डाइवर्सिफाई करते रहे ताकि पूरी की पूरी कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट रेंज चाहिए अपने लाइफ स्टाइल्स को बढ़ाने के लिए उसमें हम सेटिस्फाइड कर सके। हमारा लाइफ स्टाइल के बारे में कितना चेंज आया है वो सिर्फ एक जेनरेशन से हमको पता चल जाएगा। आप अपने घर में अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हों, अब छोटा सा बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, आप इसको करके देखिए ओरल। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए, दादाजी, नाना जी, दादी, नानी जो भी है, आप लोग जब स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे तो कैसे पढ़ते थे? वो बताएंगे, बेटा हम अपने झोला में घर से एक बोरा लेके जाया करते थे। राइट और रॉन्ग? बोरा क्या था? जूट का बैग जिसको बिछा के वो खेतों में बैठ के पढ़ते थे। खेत में पढ़ते पूछेंगे थे? ये खेत में? नो सर, स्कूल तो होता था पहले भी। पहले आई एम टॉकिंग अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट जनरेशन। पेड़ के नीचे बैठ के खेत में कौन पढ़ता था? खेत में तो सर खेती होता है। सुनिए ना, जहाँ स्कूल के नाम पे सिर्फ एक स्ट्रक्चर और एक कमरा होता था, अगर वहां 10 क्लासेस है, कोई मैदान में पेड़ के नीचे इस तरह के कॉन्सेप्ट काम होता था। बहुत रेयर क्लासेस में ऐसा देखने को मिलता था कि स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम था। ठीक है, आपके पेरेंट के जमाने में वो स्ट्रक्चर्ड हम तो आज तक नहीं क्लासरूम सुने सर कि कोई खेत में पढ़ते थे। वो भी जमाना था। और आज के दौर में आप अपने घर में मोबाइल से पढ़ रहे हैं। तो दिस इज द शिफ्ट ऑफ लाइफ स्टाइल फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकेंड टू थर्ड। नहीं तो ये हमारी जो लाइफ स्टाइल है कहां से कहां पहुंच गई। कि 2 जनरेशन पहले जो चीज यूज होता था आज के जनरेशन को पता नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल उस समय ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने पैर पे डिपेंडेंट थे, फुट पे डिपेंडेंट थे। आज हमको घर से सब्जी लाने भी जाना है, 100 या 200 मीटर की दूरी भी तय करनी है, हम अपने बाइक या कार पे डिपेंडेंट है। राइट और रॉन्ग? बैकअप नहीं है? यस सर। है ना? तो ये जो शिफ्ट हुआ तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी इससे बढ़ रही है ना। एक काम करें, आपको लिंक हम दे दें ताकि आप वो अटेंडेंस वाला काम भी करें। सर जीमेल पे आएगा? नहीं नहीं, मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूँ। जस्ट अ ओके मिनट। सर। एक आदमी बढ़ गए, 80 हो गए। आई एम जस्ट गिविंग द लिंक, गो थ्रू द लिंक, fill the details, name of the student, enrollment number, course which semester, section। एक्सक्यूज मी सर, परमिशन करेंगे आप? तभी तो परमिशन मांग रहा है। हाँ? परमिशन मांग रहा है सर।
परमिशन तो दिया है। नहीं सर, यहाँ बोल रहा है कि परमिशन नॉट अलाउड। परमिशन दीजिए सर। नीड परमिशन। आप नीड परमिशन लिखा हुआ है। ISM के आईडी से लॉगिन, एक मिनट लिसन मी, आप ISM के आईडी से लॉगिन नहीं है क्या? ISM के आईडी से लॉगिन है। है उसी के सर। आईडी से लॉगिन है सर। अब तो परमिशन का कोई जरूरत नहीं है। ब्राउज़र आईडी मांग रहा है स्क्रीनशॉट लेके सर। आपको व्हाट्सएप कर देते हैं, आप देख लीजिए, कंफर्म हो जाइए आप भी। जस्ट अ मिनट। सर प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि सबका जीमेल ISM वाले लॉगिन नहीं है, ये सिर्फ हाँ, गूगल मीट हाँ, लॉगिन है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा हाँ है। हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसका एक सॉल्यूशन, सुजीत जी, आज के लिए हम लोग, एक मिनट आप वेट करिए, एक मिनट। सर इनरोलमेंट नंबर में क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर? हाँ, ये लिंक व्हाट्सएप पे दे दीजिए ना, कॉपी नहीं हो रहा, क्रोम से खोलेंगे तो खुल जाएगा। क्रोम से भी नहीं खुल रहा है। क्रोम पे करना, कॉलेज वाला आईडी से लॉगिन कर, हो सकता है तुम्हारा पर्सनल आईडी से। मेरा हो गया। सर मेरा तो हो गया। सर कॉलेज वाले आईडी से ही है मेरा, लेकिन हो नहीं रहा है। सर नहीं हो रहा है। मेरा भी नहीं हो रहा सर। सर नहीं हो रहा है। उसके बाद तुम्हारा भी नहीं हो रहा है, बोलोगी झूठ? नहीं हो रहा। पागल हो क्या? बताए तुमको हम। लड़ लो यहीं पर, लड़ लो यहीं पर। बोलोगी तुम? मर जाओ यही लड़के। लड़ उठ रहे हैं। हेलो, सर सर आज के लिए मैंने बता दिया है। सर एनरोलमेंट नंबर में क्या डालना है? आपका रोल नंबर, एटलीस्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट जो है। ओके। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज आईडी से ही आप लोग सर लॉगिन, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर एक ही है। कॉलेज आईडी से ही लॉगिन है सर, नहीं हो रहा है। सर कॉलेज आईडी से लॉगिन किया फिर भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। हम कॉलेज आईडी पर स्विच भी करके देख लिया, नहीं हुआ। अब गूगल मीट से, अरे अभी से जाके ना साइड में लर्न मोड पे जाके ना वहाँ से चेंज कर लो। अरे हाँ, वहाँ वहीं पे जाके स्विच किया आईडी, कॉलेज आईडी की है, फिर भी नहीं खुल रहा है। हाँ कॉलेज आईडी स्विच कर लिया। फिर स्विच करके ना दोबारा से रीओपन करो, हो जाएगा। अभी हो जाएगा। अभी मैंने सारा रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है। 2-3 बार चलो ना, हो जाएगा। 40 हो गया सर, रिकॉर्ड दिया। 40 रिस्पॉन्स मुझे आ चुका है। हाँ आ गया कर दिया है। 5 मिनट है आपके, आप लोग करिए इसको। सर लिंक दोबारा भेजिए सर। चैट में ऑलरेडी दिया हुआ है। सर इनरोलमेंट हो गया था सर। एक्सक्यूज मी सर, इनरोलमेंट नोट में क्या डाले सर? रजिस्ट्रेशन नंबर, लास्ट 3 डिजिट ना सर? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैट बॉक्स में नाम ना लिखें, कोई फायदा नहीं है। सर ये फॉर्म अटेंडेंस एक्सेस, हाँ सर लिंक दोबारा भेज दीजिए सर। भेज दिए। मैं लॉग आउट हो गया था। भेज दिए, 3 बार भेज दिए। डोंट वरी सर। सर एक बार हो गया तो दोबारा से करना पड़ेगा क्या? दोबारा लेगा ही नहीं। करके देखें? कर दे। आप चाहते हैं तो आप करके देखिए। क्या सर? 6-7 बार कर लो। इनरोलमेंट नंबर में क्या डालना है? इनरोलमेंट नंबर में क्या डालना है? रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन का लास्ट 3 डिजिट। तो रिकॉर्ड सर दोबारा सर सबमिट करने का दोबारा भी ऑप्शन आ रहा है। सर है ही नहीं। दोबारा ही कर दो। 4-5 दिन का अटेंडेंस बन जाएगा। सारा रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे तो ये भी हट गया था। अब सिंगल रिस्पॉन्स, आप दोबारा करके देखिए, नहीं होगा। सर कितना सर इनरोल हुआ है सर, देखिए तो सर। सर इस लिंक से अच्छा है वही नहीं था जो हम लोग चैट बॉक्स में डाल रहे थे।
दोबारा उसमें नहीं हो रहा। अब नहीं होगा। चेक कर लो। देखिए अच्छे 7 दिन का अटेंडेंस बनाना चाहिए। चलिए सबका हो गया। कुछ लोगों ने 2 बार 3 बार भी किया है। सारा रिकॉर्ड दिख रहा है। जाऊँ सर, लीव करूँ? सर वो लिंक वापस भेज दीजिए ना एक बार सर, वो वहाँ से सर जो लीव 2 हुआ से था 3 तो बार हट किया गया था उसको 2 ऑटोमेटिक दिन सर। का अटेंडेंस दीजिएगा सर। सर मेरा नहीं हो रहा है सर। आ गया सर। तो मास्टर जी चल गए। में नहीं क्या हुआ है? बहुत जाली में सर जो कि छोड़ के चले जाते हैं। या करते होवे ना कर लोग मुझे कुछ नहीं।